Um, so, very good afternoon, everyone. On behalf of TechAll InfoSec, I warmly welcome all our participants to today's webinar on DPTP compliance for Indian BFSI from policy to production before the deadline. So, myself, Lavanya, and I'll be your moderator for the next 30 minutes. So, thank you all for taking time out of your busy schedule to join us today. So, before we begin, please, I would request everyone to use the chat to drop your questions. We will address them during a dedicated question and answer session. So this session is being recorded, and before we proceed, we have something exciting planned for all the participants at the end of the webinar. So I personally encourage you to stay with us until the very end. So in today's webinar, we will discuss the key requirements of the DPDPA Act 2020 and DPDP rules of 2025. Can you please mute the others? Yeah. All the participants, I request, please mute yourself. Thank you so much. So yeah, in today's webinar, we'll discuss the key requirements of DPDP Act and DPDP rules, important deadlines, implementation strategies, compliance obligations, potential penalties, and their impact on BFSI organizations. All right. So we will also share practical steps to help organizations achieve DPDP readiness. And to make the session more interactive, we will have a quick quiz at the end, followed by a complimentary 30-minute DPDP readiness assessment. So please bear with us until the webinar. Exciting gift vouchers will be also awarded to the quiz winners. So stay tuned until the end, sir. So yeah, before we begin, let me briefly touch upon what DPDP is. The DPDP Act in India's data privacy law introduced in 2023 to protect individuals, citizens' personal data and ensure organizations handle it responsibly. While countries like those in Europe have had privacy laws such as GDPR for several years. So now India is now taking a major step towards strengthening the data protection and privacy. And for the BFSI sector, where customer data is at the core of operations, understanding DPDP compliance has become more important than ever, right? So with that, let's hear from our experts today. It is my pleasure to introduce Mr. Ravikiran Mankikar, sir, the chairman of RKM Consultants. With over 35 years of experience in banking, technology, cybersecurity, and regulatory compliance, he has guided more than 95 banks and financial institutions in their digital transformation and governance journey. A recognized industry expert, DSCI Certified Data Protection Officer, over 50 IT BFSI awards he has. He continues to advise organizations through RKM Consultants on the data privacy, cybersecurity, and regulatory compliance. So a very warm welcome to you, sir, from our whole team. And then our next speaker we have, that is Mr. Ravi Raval, sir. He's the CEO of TechAll InfoSec, brings over 10 years of experience in cybersecurity and compliance. And recently, he has been recognized the Cyber 50 India's Elite Founders list for his contributions to the Indian cybersecurity ecosystem, and continues to help organizations strengthen their cybersecurity resilience and security posture. So a very warm welcome to you also, Ravi. I would request the participants to please mute yourself. Thank you so much. Yeah. So let's start with the most fundamental question: that does this act apply to you and your organization? So I'm delighted to hand over to Mr. Ravikiran, sir, who will walk us through the applicability criteria and which industries fall under the DPDP framework. So Ravikiran, sir, the floor is yours. Yeah, thank you, Lavanya, for the kind introduction. And
Welcome everyone to this webinar. I'll just correct Lavanya a bit. It is not going to be a 30-minute, but it's going to be nearly 1.5 hours. Because कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिटेल में हमें समझना चाहिए. और जैसे लावण्या ने कहा कि is it applicable to us? Yes, it is applicable to us. कई बैंकों ने ऐसे भी कहा है कि आरबीआई ने कुछ कहा नहीं है, आरबीआई ने कुछ सर्कुलर निकाला नहीं है. सो एक हमें सबने समझना चाहिए कि एक सेंट्रल कायदा है. जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं तो आरबीआई उस पर कुछ सर्कुलर नहीं निकालता, या हम जीएसटी पे करते हैं आरबीआई उस पर कुछ सर्कुलर नहीं निकालता, या ऐसे कोई भी सेंट्रल कायदे हैं तो आरबीआई सिर्फ उस पर थोड़े गाइडलाइंस देते हैं. और बहुत सारी चीजें अलग अलग सर्कुलर्स में ऑलरेडी कवर्ड है, जो आज के सेशन में हम देखेंगे. तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, सो विच आई विल जस्ट शेयर. एक मिनट, I'll just Yes, sir. Your screen is visible now. 1 minute. Oh, just I have to discuss. share screen. Yes, enter screen. Is this visible? Yes, sir. Yeah. Yes. Screen is Thank you, visible. thank you, Raviji, for inviting me for this webinar, and it's a pleasure to work jointly on this. आज का I won't introduce myself, लावण्या ने already introduce किया हुआ है. आज का जो कवरेज है ये 8 स्तर में मैं कवर करूंगा. पहला कि जो डीपीडीपी एक्ट है, व्हाट इज द नीड, उसका महत्व क्या है. फिर उसके की सेक्शंस हम देखेंगे कि एक्ट के की सेक्शंस जो लागू हैं वो, की रूल्स जो लगे हुए हैं, और एनफोर्समेंट और कंप्लायंस क्या क्या करना है. दिस इज फ्रॉम द रेगुलेटरी पार्ट, रेगुलेटरी यानी फ्रॉम द डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पार्ट. फिर हम आएंगे आरबीआई का मैपिंग, यानी जो भी डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट का मैपिंग है टू वेरियस आरबीआई सर्कुलर्स, उस पे हम देखेंगे कि आरबीआई ने उसका कहाँ कहाँ उसका उल्लेख डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया हुआ है. फिर हमें एज बैंक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, और अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी लग सकती है, और हम और टेकऑल आपको कैसे इसमें कंप्लायंस जर्नी में मदद कर सकते हैं. डीपीडीपी एक्ट की शुरुआत 2017 में हुई, जब भी पुट्टास्वामी करके एक जज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की कि ये जो पर्सनल डेटा का प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट. एक्सक्यूज मी, जरा म्यूट करेंगे प्लीज, थैंक यू. तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट होने के बावजूद उसको एनफोर्स करने जैसा कुछ लॉ नहीं था. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना. फिर एक श्री कृष्ण कमेटी बिठाई गई. फिर 2022 में पार्लियामेंट में इसका एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट हुआ. 2023 में ये कायदा बाकायदा पार्लियामेंट ने पास किया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किए, और ये हमें नवंबर 2025 में ये रूल्स नोटिफाई हुए कि क्या क्या उसमें करने हैं और कैसे उसको करना है. इसका जो रेगुलेशन है, जैसे हमें एज कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेटर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. डीपीडीपी एक्ट के लिए रेगुलेटर है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, और उसकी स्थापना भी हो जा रही है. और एक बार उसकी स्थापना हुई तो ये पूरा एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका ओवरसाइट विल बी अंडर द डीपीबी. यहाँ 3 डेट्स हमें महत्व के हैं. दिसंबर 2023 जब ये एक्ट लागू हुआ, नवंबर 2025 जब इसके रूल्स पब्लिश हुए. ये रूल्स में ऐसे कहा गया कि सभी घटकों को एक 18 महीने की कालावधि दी जा रही है
ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए या एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें एक कैटेगराइजेशन है कॉल्ड एसडीएफ, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी। और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी, उसके पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा फॉर 3 टर्म्स जो हम बार बार वर्क करेंगे। एक है डेटा फिड्यूशियरी, यानी हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक है डेटा प्रिंसिपल, यानी वो जिसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो डेटा प्रिंसिपल का डेटा फिड्यूशियरी कलेक्ट करेगा, और इसका प्रोसेसिंग जो करेगा उसका टर्म है डेटा प्रोसेसर। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी का हम थ्रू आउट ये प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं उसका वापर किया जाएगा। एक्ट में एक ऐसे प्रवचन किया गया है कि जो फिड्यूशियरी बहुत बड़ी संख्या में प्रोसेसिंग करता है या बड़ी बहुत संख्या में डेटा कलेक्ट करता है, उसे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी का कैटेगरी में डाला जाएगा। अभी इसमें एक हमें समझना है कि हमें एज डेटा फिड्यूशियरी हमें खुद को एसडीएफ कैटेगराइजेशन करने का अधिकार नहीं है, या कैटेगराइजेशन नहीं करने का भी अधिकार नहीं है। ये कैटेगराइजेशन गवर्नमेंट करेगी और गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। और ये नोटिफिकेशन के अंडर ऐसे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है या बैंकिंग इंडस्ट्री है या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री है, ये पूरे जहां बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, ये जो भी बैंकिंग में आते हैं या इंश्योरेंस में आते हैं, ये सभी संस्था एसडीएफ में कैटेगराइज हो जाएंगे। और प्लीज जरा म्यूट करेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सभी वेबिनार को। और ऐसे एक निर्णय लिया जाएगा कि जो एसडीएफ कैटेगरी में कैटेगराइज हो रहे हैं संस्था, उसकी कंप्लायंस की तारीख मई 2027 न होने से नवंबर 2026 होने वाली है। यानी अगर बैंकिंग को कैटेगराइज किया, और बैंकिंग में हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी शामिल है, तो एक बहुत बड़ी संभावना है कि हमें सबको ये आने वाले नवंबर तक हमारा कंप्लायंस पूर्ण रीते करना पड़ेगा। ये क्यों आया? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का वापर बहुत ज्यादा हो रहा है, और जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का वापर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी तरह उसी प्रोपोर्शन में डिजिटल ब्रीच यानी डेटा लीकेज का भी प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। दूसरा अगर देखें तो बहुत सारे संस्थाएं इनके फॉरेन, और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में इतर जो देश हैं, यहाँ डीपीडीपी एक्ट जैसे उनके खुद के एक्ट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। एक सवाल मुझे पूछा गया कि डीपीडीपी एक्ट इतने जल्दी कैसे लग गया। एक हमें समझना चाहिए कि देश भर में 193 देश हैं। 193 देशों में से 130 देशों में डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के अनुसंधान में जो कायदे हैं, ये ऑलरेडी लागू हैं। यानी उसके प्रमाण में अगर देखेंगे तो हमने ऑलरेडी जरा देर की है। और आज ये कायदा होने से इसमें जो भी संस्था पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है, सभी संस्था इसमें कवर्ड है। इसमें बैंक होगी, इंश्योरेंस कंपनी होगी, हॉस्पिटल होंगे, कोई भी होटल रहेंगे जहां हम जाके रहते हैं,
या एयरलाइन रहेगी, रेलवेज रहेंगे, जहां जहां हम टिकट बुकिंग के लिए या रहने के लिए हम हमारा आधार कार्ड वगैरह देते हैं, ये सभी ये एक्ट के दायरे में आते हैं। और एक सबसे महत्व घटक ये एक्ट में जो प्रोटेक्शन में लगाया हुआ है, ये है चाइल्ड यानी माइनर। आज माइनर का शोषण या माइनर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़े प्रमाण में हो रहा है, और उस पे रोक और निर्बंध लाने के लिए भी ये डेटा प्राइवेसी एक्ट में चाइल्ड सेफ्टी का भी उल्लेख बहुत स्ट्रिक्टली किया हुआ है। हम बैंक्स भी अगर देखेंगे तो माइनर अकाउंट्स खोलते हैं, और जब भी माइनर अकाउंट्स खोलते हैं तभी उनका डेटा सेफ रखना या उन पे और उस पे क्या क्या करना है हम आगे जाके देखेंगे। तो ये चाइल्ड सेफ्टी के जो नियम है वो हमें बैंक होके भी हमें ये लागू है। ये एक्ट के अगर हम की प्रोविजंस अगर देखेंगे तो एक महत्व का भाग है कि सभी चीजें के लिए डेटा प्रिंसिपल का कंसेंट होना जरूरी है, लेकिन ये मुख्य घटक नहीं है। अभी एक मैंने चैट में एक क्वेश्चन देखा कि कंसेंट्स डीपीडीपी एक्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंसेंट। नहीं, कंसेंट सिर्फ 20% कवरेज है ये पूरा डीपी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगर आपको कोई आके बोलेगा कि आपने कंसेंट मैनेजमेंट का टूल डाला या कंसेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया तो आप कंप्लायंट है, तो ये बात गलत है। कंसेंट होना चाहिए, और कंसेंट में क्या करना चाहिए ये सब हम आगे जाके देखेंगे। फिर हमें फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस यानी हम संस्था है जो डेटा कलेक्ट करती है, तो ये एक्ट के मुताबिक हमें कोई ऑब्लिगेशंस है, कई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई हमें ये एक्ट के हिसाब से कुछ तरीके से हमें काम करना है। वो क्या है हम आगे जाके देखेंगे। वैसे ही डेटा प्रिंसिपल यानी जो डेटा दे रहा है हमको, उसको ये एक्ट ने कई अधिकार दिए हुए हैं, और ये अधिकार का फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी फिड्यूशरी पे यानी हम पे है। चाइल्ड डेटा का प्रोटेक्शन करना, उसका प्रोसेसिंग करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर यानी भारत के बाहर जो डेटा जा रहा है, या भारत के बाहर अभी बहुत सारे हम बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस करते होंगे, या फॉरेन एक्सचेंज के एलसी करते होंगे, या फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड बहुत सारे या फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते होंगे। वीजा मास्टर का प्लीज जरा म्यूट करेंगे, जो भी बात कर रहा है प्लीज म्यूट कीजिए। सो ये क्रॉस बॉर्डर में भी हमें डीपीडीपी एक्ट का इसका दूसरा क्रॉस बॉर्डर में जो महत्व है कि उन देशों में अगर उनके प्राइवेसी लॉज लागू है तो हमें भी डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि हमारे देश में भी हमने डेटा प्राइवेसी लॉज का पालन किया हुआ है, कंप्लायंस किया हुआ है। सो ये सिर्फ कंप्लायंस विद इन इंडिया का हिस्सा नहीं है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स के लिए भी हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वी आर अडियरिंग टू डेटा प्राइवेसी नॉर्म्स। इसमें कोई चीजें एग्जेम्प्टेड है, वो क्या है वो हम देख लेंगे। और अगर ये हमने नहीं किया तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी भी लग सकती है। अब ये सेक्शंस में क्या क्या है, सेक्शंस 2 से 5 में डेफिनेशन है, स्कोप है, कंसेप्ट्स है, 6 से 10 में कंसेंट है, फिड्यूशरी के जो ऑब्लिगेशंस है वो हमने देखे हैं, चाइल्ड डेटा प्रोटेक्शन में क्या करना है वो देखे हैं। एसडीएफ, अगर जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स को एसडीएफ में कैटेगराइज होने की बहुत बड़ी संभावना है,
तो उसमें अब हमें एज बैंक और क्या क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। सेक्शन 11 to 17 में क्या क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे, और सेक्शन 33 के हिसाब से पेनल्टी फ्रेमवर्क। अभी ये अगर हम देखेंगे पर्सनल डेटा में, एक चीज हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक्ट सिर्फ डिजिटल डेटा को लागू है। डिजिटल डेटा यानी जो हमने स्कैन किया होगा या ऑनलाइन किया होगा या सिस्टम में रख रहे हैं या सीबीएस में रख रहे हैं या पेमेंट सिस्टम में रख रहे हैं। अभी अगर ये सिर्फ कागज पे है तो ये एक्ट लागू नहीं है, लेकिन कागज पे है और आगे जाके उसको डिजिटाइज करेंगे तो ये कायदा लागू है। ये हमने बात की डेटा फिड्यूशियरी कौन है, हम हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा प्रिंसिपल वो है जिसका डेटा लिया जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग जो कर रहा है वो प्रोसेसर। अभी यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम सीबीएस लेते हैं और बहुत सारे बैंक्स एएसपी पे काम करते हैं, तो जो एएसपी का वेंडर है वो डेटा प्रोसेसर होगा। या हम पेमेंट के लिए कोई दूसरे वेंडर से टाई अप करते हैं, एटीएम स्विच होगा या यूपीआई स्विच होगा या पेमेंट स्विच होगा, वो अलग वेंडर से करते होंगे, तो वो भी दूसरा डेटा प्रोसेसर हो जाएगा। सो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डेटा कोई भी हम खुद करें तो भी हम प्रोसेसर होते हैं, थर्ड पार्टी होए तो वो भी प्रोसेसर का, थर्ड पार्टी प्रोसेसर का जो नियम है वो लागू है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी के जो सर्कुलर्स पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई भी एक्टिविटी आउटसोर्स किए होगी कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी फॉर फ्रॉड या जिम्मेदारी फॉर साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस ये हमारी रहती है। सो सिमिलरली डेटा प्रोटेक्शन की जो भी कंप्लायंस की जिम्मेदारी है, ये सभी जिम्मेदारी फिड्यूशियरी की है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे हम नहीं बोल सकते कि वो वेंडर मान नहीं रहा है या उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो मान नहीं रहा है वगैरह वगैरह। पूरे जिम्मेदारी हमारे पास है। और जो भी डीपीडीपी के जो क्लॉजेस है, ये क्लॉजेस हमें उससे नया एक एग्रीमेंट, उसको डेटा प्रोसेसर एग्रीमेंट करके है, वो हमें बनाना पड़ेगा। अगर वो प्रोसेसर नहीं है लेकिन वो हमारा डेटा हम उससे शेयर करते हैं, तो उससे हमें उनके एसएलए में, उनके एग्रीमेंट में डीपीडीपी रिलेटेड क्लॉजेस भी इंक्लूड करने लगेंगे। कंसेंट फ्रेमवर्क होगा। कंसेंट लेने के पहले उसे नोटिस देनी पड़ेगी। अभी हमारे बैंकिंग पार्लेंस में, बैंकिंग परिभाषा में नोटिस का मतलब अलग रहता है। डीपीडीपी एक्ट में नोटिस का मतलब है उसको इन्फॉर्म करना कि हम क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं वगैरह वगैरह। इसमें एक बहुत महत्व का क्लॉज है कॉल्ड लेजिटिमेट यूज। अभी लेजिटिमेट यूज यानी क्या कि जो भी एक्टिविटी हम बैंक करके करते हैं विच इज इन कंप्लायंस टू सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे हम एक बैंकिंग ऑपरेशन करते हैं विच कम्स अंडर बीआर एक्ट, या हम कोई ऐसे एक्टिविटी करते हैं विच कम्स अंडर सेरसाई एक्ट जैसे सिविल को डेटा देना, या कोई एक्टिविटी होती है अंडर पीएमएलए एक्ट जैसे हम एफआईयू को डेटा शेयर करते हैं। ये सभी चीजें लेजिटिमेट यूज में आते हैं। और जो भी लेजिटिमेट यूज में आता है उसे हमें कंसेंट लेने की गरज प्लीज जरा म्यूट मुझे देख करेंगे। लीजिए भाई, एक टाइप प्रॉब्लम।
जो भी बात कर रहा है प्लीज म्यूट कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिड्यूशियरी यानी बैंक करके हमें क्या ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन यानी ये जो भी बात कर रहे हैं प्लीज आप म्यूट करेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिड्यूशियरी की ऑब्लिगेशंस है कि आप कस्टमर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए रीजनेबल सिक्योरिटी के मेजर्स ले। दूसरा, अगर आपके यहाँ डेटा लीकेज हुआ या आपके यहाँ से कोई डेटा बाहर गया या कोई भी तरीके से एक ब्रीच हुआ जहां से कस्टमर का डेटा बाहर अनऑथराइज यूज हो गया या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, तो हमें 72 घंटे के अंदर उस कस्टमर को उसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए और बोर्ड यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। डेटा फिड्यूशियरी की और एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एक ग्रीवियंस ऑफिसर यानी कंप्लेंट लेने के लिए एक ऑफिसर रखना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल का जो डेटा है उसको एक्यूरेट रखना, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। चाइल्ड डेटा प्रोटेक्शन पे बहुत जोर दिया गया है और अगर ये उल्लंघन हुआ तो चाइल्ड डेटा कंप्लायंस न होने पे अलग 200 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें चाइल्ड डेटा का जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अधिक है। इसमें एक कंसेप्ट डाला गया है, वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेप्ट। वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट यानी क्या? आज हम जो गार्डियन है या पेरेंट है उसका आधार कार्ड वगैरह हम लेके रखते हैं, लेकिन उसको हम वेरीफाई भी करने का जिम्मेदारी हमारी है कि उसे वो कंसेंट देने का अधिकार है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है फॉर माइनर्स कि हम उन पे कोई भी प्रकार की एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी बहुत सारे बैंक का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है कि हम आपको एजुकेशनल लोन देंगे। अभी एजुकेशनल लोन हम किसको टारगेट करते हैं? जो माइनर्स हैं। तो ये हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि भले उसका कंसेंट हो रिकॉर्ड पे, फिर भी ये एक्ट हमें एडवर्टाइजिंग या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग प्रोहिबिट करता है, नहीं कर सकते। वो हमको इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? क्योंकि हम उसका एमआईएस करते हैं। ये अगर एमआईएस अगर करते हैं तो उसका प्रोफाइलिंग करते हैं। तो ये एक्ट में भी प्रोफाइलिंग और डूइंग एमआईएस ऑफ चाइल्ड डेटा पे बंदी है। हम अगर कोई चाइल्ड डेटा का एमआईएस भी निकाले तो उसका नाम उसमें नहीं आना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, नहीं तो 200 करोड़ तक का पेनल्टी हमें लग सकती है अगर वो चाइल्ड ने या वो गार्डियन ने कंप्लेंट किया तो। इसमें एक एग्जाम्पशन है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज है या स्कूल है और हेल्थ यानी अगर वो चाइल्ड कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है या उस पर कोई उपचार हो रहा है तो उसका डेटा एक्सेस करने के लिए या उसका डेटा पे कुछ एनालिसिस करने के लिए वो छूट दी गई है। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी जो हमने बात की, और बहुत बड़ी संभावना है कि बैंकिंग ये सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी के अंतर्गत हमें क्लासिफाई किया जाएगा। ये सेक्शन 2(z) के अंडर गवर्नमेंट हमें नोटिफाई करेगी अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। और इस पे हमें 3 चीजें एडिशनल करनी पड़ती है। एक यानी डेटा प्राइवेसी ऑफिसर कहिए या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कहिए
ये डेजिग्नेटेड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना जरूरी है। जैसे आरबीआई कहती है कि लेवल 3 बैंक्स एंड अबव को सीसो होना जरूरी है, वैसे ही अगर एसडीएफ है तो डीपीओ होना जरूरी है। दूसरा कि हर साल हमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट करके लेने चाहिए। और तीसरा, हमें डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, डीपीआईए। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा का ऐसे कोई संभावना है क्या कि जहां लीक हो सकता है, या कोई हमारे प्रोटेक्शन में कोई खामियां है जिससे डेटा ब्रीच हो सकता है। तो ये वर्चुअल डीपीओ चुन सकते हैं क्या बैंक? हाँ, वर्चुअल डीपीओ पे ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डेजिग्नेटेड डीपीओ एसडीएफ के लिए लगता है। लेकिन मेरा एक मानना है तो कोई ना एक व्यक्ति होना चाहिए, जो आप एसडीएफ कैटेगरी में हो नहीं हो, ये आपका बिजनेस साइड और रेगुलेटर यानी डीपीबी के बीच का जो माध्यम है, ये डीपीओ ऑफिस बनेगा। तो वर्चुअल भी हो सकता है, डेजिग्नेटेड डीपीओ भी हो सकता है, लेकिन वर्चुअल भी अगर होगा तो भी जिम्मेदारी ये बैंक की रहती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर वर्चुअल डीपीओ है और वो एक्सटर्नल एजेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि he is responsible. Responsibility lies with the fiduciary. यस सर, यस, थैंक यू सर। तो ये हमने देखा कि डीपीओ, एनुअल डीपीआई, बोर्ड रिपोर्टिंग इज नॉट आवर बोर्ड रिपोर्टिंग इज डीपीबी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सालाना हमें अगर इंसिडेंट हुआ है क्या, डीपीआईए का रिपोर्ट या हमारा ऑडिट रिपोर्ट, जैसे हम हमारे आईएएस ऑडिट रिपोर्ट आरबीआई को देते हैं, वैसे ही इसका जो डीपीबी का जो गैप असेसमेंट का रिपोर्ट होगा या डीपीआईए का रिपोर्ट होगा, उसका कंप्लायंस हमें डीपीबी को देना चाहिए। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार 5 हैं, उसको वो हम आगे जाके सविस्तर में भी देखेंगे। एक, उसको हमारे डेटा को एक्सेस देना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिस्टम का एक लॉगिन दे दो, उसको सिर्फ ये बताना है कि हम उसका कौन सा डेटा ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ये चीजें उसको बताने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए। अगर उसने कहा कि उसमें गलती है तो उसको करेक्ट करने के लिए उससे रिक्वेस्ट ले सकते हैं, ये उसका अधिकार है कि वो रिक्वेस्ट दे सकता है कि करेक्ट माय डेटा। अगर उसको ऐसे लगता है कि ये डेटा बैंक को नहीं चाहिए तो वो डिलीट करो करके एक आदेश दे सकता है। अभी इसमें एक हमें समझना चाहिए कि जो लेजिटिमेट यूज के लिए जो डेटा लगता है, यानी जो बैंकिंग के लिए हमें डेटा लगता है, और जो हमें बीआर एक्ट के अंतर्गत या पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत या ऐसे कोई भी एक्ट जिसे हमको कंप्लायंस देना है, वो एक्ट के अंतर्गत हमें अगर डेटा रखना है तो वो हम डिलीट नहीं कर सकते। तो भले कस्टमर ने हमें इरेज करने का आदेश दिया है, उसे हमें बताना पड़ेगा कि ये कंप्लायंस हमें लेजिटिमेट यूज के अंतर्गत हम ये डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा उसका अधिकार है कि ग्रीवियंस रिड्रेसल, कि उसको कंप्लेंट करने का अधिकार है और उसका कंप्लेंट का निरासन करने का ऑब्लिगेशन फिड्यूशियरी पे है। दूसरा कि इनकैपेसिटी यानी नॉमिनेशन फैसिलिटी। अभी नॉमिनेशन बैंकों में क्या होता है कि अगर वो मर गया अपना कस्टमर, तो उसका फाइनेंसेस का कस्टोडियन इज द नॉमिनी। डीपीडीपी एक्ट के अंदर अगर समझो मैं प्रिंसिपल हूं और मैं किसी भी तरह मेरा डेटा प्रिंसिपल के जो राइट्स हैं ये फुलफिल मैं नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, तो मैं किसी और व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता हूं और कह सकता हूं कि आई एम नॉमिनेटिंग दैट पर्सन टू फुलफिल द डेटा प्रिंसिपल राइट्स ऑन माय बिहाफ।
So he is as good as the data principal. ये है data principal rights as per section 11 to 14. उसके ड्यूटीज भी हैं कि वो इम्पोर्सनेट नहीं कर सकता। दूसरा, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है ये सप्रेस नहीं कर सकता। झूठी कंप्लेंट या फ्रिवलेस कंप्लेंट या फालतू की कंप्लेंट नहीं कर सकता। जो भी एक्ट कहता है कि डेटा प्रिंसिपल के दायरे में क्या क्या होना चाहिए, ये सभी चीजें उसको पाबंद में है। और जब भी डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए अगर फिड्यूशियरी ने कोई एविडेंस मांगा या कोई प्रूफ मांगा तो वो देने का उस पे बंधन कारक है। और ये इसमें से अगर उसमें से कुछ नहीं किया तो उसको 10,000 रुपया पर इंस्टेंस पर डे की पेनल्टी लग सकती है। यानी जैसे हमने कहा कि फिड्यूशियरी को 200 करोड़ या 250 करोड़ जो भी है वो अलग अलग, वो हम आगे जाके देखेंगे, तो वैसे प्रिंसिपल को भी 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। इसमें से कोई भी एक को, यानी उसने इम्पर्सनेट किया तो 10,000, सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन 10,000 वगैरह वगैरह, ऐसे उसको लग सकती है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, ये हमने देखा कि we can transfer data only to countries which have been allowed by the central government. यानी जहां गवर्नमेंट ने परवानगी नहीं दी है, उन्होंने परमिशन दिया नहीं है, उन देशों को हम नहीं दे सकते। जो सेंसिटिव डेटा है वो अगर हमें शेयर करना है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। अभी जैसे हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल कभी कभी एक फॉरेन डॉक्टर के साथ संपर्क में जाके वो केस डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी डेटा प्रिंसिपल की। लेकिन उन पे पाबंदी भले नहीं है, फिर भी वो प्रिंसिपल की सम्मति से ही वो शेयर कर सकते हैं। इसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें प्रोसेसर्स कभी कभी, जैसे वीसा, अभी हम ई कॉमर्स करते हैं और ई कॉमर्स करते टाइम हम वीजा के पास जाते हैं और वीजा का जो सर्वर्स या डेटा प्रोसेसिंग है वो इंडिया में नहीं है, वो बाहर है। सो इसमें भी हमें सावधानी बरतनी है और वहां भी अगर ब्रीच हो गया तो उसकी जवाबदारी फिड्यूशियरी की है। यहां सभी चीजों के लिए हमें एज बैंक्स, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो आउट कंट्री यानी आउट ऑफ इंडिया जो प्रोसेसर्स रहेंगे उन पे ऑडिट राइट्स का भी क्लॉज होनी चाहिए, तो वो हमें करना चाहिए। और दूसरा, मॉनिटरिंग कि कहाँ कहाँ ये कंट्रीज का लिस्ट है जहां हम शेयर कर सकते हैं, वो लिस्ट हमें रिव्यू करके देखना चाहिए कि कोई बैंड कंट्री में हमारा डेटा नहीं जा रहा है। अभी एग्जेम्पशंस अंडर डीपीडीपी एक्ट, दिस इज फॉर शेयरिंग। अभी शेयरिंग में क्या है कि अगर कोई कोर्ट है या रेगुलेटर है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस, ये हमें डेटा मांगती है तो हमें देना चाहिए और इसके लिए कंसेंट की गरज नहीं है। यानी विदाउट कंसेंट ऑल्सो वी कैन शेयर दिस डेटा विथ एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अगर कोई रिसर्च के लिए कर रहा है तो रिसर्च के लिए भी डेटा दे सकते हैं, लेकिन उसको एनोनिमाइज करना पड़ेगा। एनोनिमाइज यानी कोई भी इंडिविजुअल का नाम नहीं आना चाहिए उसमें, क्योंकि आगे जाके वो जिसने उस पे रिसर्च किया है उसको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल का ये डेटा था। सिमिलरली मीडिया, अगर मीडिया को कुछ डेटा चाहिए तो भी यू कैन डू इट इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट अगेन इस पे भी एनोनिमाइजेशन होना चाहिए। एनोनिमाइजेशन यानी गुप्त रखने का नाम। पेनल्टीज का हम बाद में देखेंगे।
अभी रूल्स देखेंगे। रूल्स के पहले है कंसेंट नोटिस देना है, कंसेंट मैनेजर या कंसेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम ले सकते हैं। एक्ट के हिसाब से इंग्लिश अथवा कोई भी 22 लैंग्वेजेस में आपको ये नोटिस और कंसेंट होने की आवश्यकता है। यानी अगर आपका कस्टमर कहता है कि मुझे तमिल में चाहिए, तो तमिल में आपको ये देने की गरज है। एक उसमें नोटिफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है संथाली या संस्कृत, तो ये संथाली या संस्कृत में भी आपको नोटिस या कंसेंट लेने की सुविधा होनी चाहिए। दिस इज एज पर द एक्ट। दूसरा, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी जो भी आपका डेटा है उसे सिक्योर रखना और उसको प्राइवेट रखना, इसकी जिम्मेदारी फिड्यूशियरी की है। तीसरा, चाइल्ड डेटा, ये हमने बात की, तो ये सभी रूल्स हम आगे जाके भी देखेंगे। कंसेंट में ये सबसे महत्व का जो है कि अलग अलग जो एक्टिविटी हम करते हैं उसका हमें अलग अलग नोटिस देना चाहिए और अलग अलग कंसेंट देना चाहिए। क्लब्ड कंसेंट इज नॉट अलाउड। यानी जैसे आज हम अकाउंट ओपनिंग के समय जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे वो एक पेज में डालते हैं और नीचे उसकी सही लेते हैं, ये अभी अलाउड नहीं है। दूसरा, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इट हैज टू बी फ्री। फ्री यानी फुकट नहीं, फ्री यानी कोई दबाव नहीं, कोई कोअर्शन नहीं, फ्री विल से उसने कंसेंट देना चाहिए। इट हैज टू बी अनएम्बिग्यूअस, यानी बहुत ही स्पष्ट और सरल रीति से आप उसको बताएंगे, यानी नोटिस देंगे, और उसका जो कंसेंट है वो अनइक्विवल, यानी उसका जो कंसेंट है ये कहीं भी उसको किंतु परंतु ये नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी क्लियर कि मैंने कंसेंट दिया है या नहीं दिया है। और कोई भी कंसेंट आप बंडल नहीं कर सकते। अभी कंसेंट का जो सॉफ्टवेयर है ये आप खुद वापर सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं या एक ऑथराइज्ड एजेंसी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उनका सर्विसेज आप ले सकते हैं। वो जो एजेंसी है उसको उन्होंने नाम दिया है कंसेंट मैनेजर। आज के तारीख में 6 संस्था है जिसे कंसेंट मैनेजर की शॉर्टलिस्ट की गई है, अब तक किसी को अनुमति नहीं दी गई है। अभी शायद जो कंसेंट का सॉफ्टवेयर देने वाले आपको आके मिलते होंगे या फोन करते होंगे और वो बोलते होंगे वी आर ऑथराइज्ड कंसेंट मैनेजर्स। आज के दिन तक गवर्नमेंट ने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ 6 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, और ये जो 6 लोग हैं उनको क्या कैसे शॉर्टलिस्ट करने का वगैरह उनका उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, और वो क्राइटेरिया जिसने फुलफिल किया है उन्होंने उनको शॉर्टलिस्ट किया है। अभी कंसेंट मैनेजमेंट और कंसेंट मैनेजर में क्या फर्क है? कंसेंट मैनेजमेंट इज इंटरनल टू द फिड्यूशियरी, यानी आप आपके लिए कर रहे हैं। कंसेंट मैनेजर इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल फिड्यूशियरी। जैसे हम एएसपी में जाते हैं, एएसपी क्या करता है, मल्टीपल बैंक्स को एएसपी पे लेता है, तो कोई भी बैंक जाके उसका सर्विस ले सकता है। वैसे ही कंसेंट मैनेजर मल्टीपल डेटा फिड्यूशियरी को या मल्टीपल प्रिंसिपल को सर्विस दे सकता है। यानी समझो अकाउंट ओपनिंग, अगर मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है या आईसीआईसीआई बैंक में है या इंडसइंड बैंक में है या तीनों में है, तो अगर मैंने खुद का कंसेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाला तो हर बैंक को अलग अलग कंसेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। अगर ये बैंक्स कंसेंट मैनेजर के पास गए तो कंसेंट मैनेजर ये टाइप करेंगे ये 3 बैंक से, और अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको वहां दिखाएगा कि यू कैन गिव कंसेंट टू इंडसइंड बैंक, गिव कंसेंट टू आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह वगैरह।
सो इट इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी या सेंट्रल एजेंसी जहां कंसेंट का देवान घेवान हो सकता है, बट वो फैसिलिटेटर है, ये हमको समझना चाहिए। रूल्स 5 to 8 की हमें सिक्योरिटी क्या क्या करनी है उस पे ये लिखा हुआ है। एनक्रिप्शन करना चाहिए, पीआईआई डेटा एनक्रिप्ट होना चाहिए। आरबीआई ने भी बहुत सख्ती से कहा है कि हमारा जो पीआईआई डेटा है ये हमें एनक्रिप्ट होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल्स, आरबीएसी यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स हमें डालनी चाहिए कि नीड टू नो नीड टू बेसिस पे ही पर्सनल डेटा का एक्सेस दिया जाएगा। लॉग रिटेंशन किमान 1 साल के लिए होने चाहिए। आरबीआई ने भी कहा है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होना चाहिए, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमें करना चाहिए पीरियोडिक। ब्रीच नोटिफिकेशन की हमने बात की कि जो प्रिंसिपल है उसको बताना चाहिए, बोर्ड को यानी डीपीबी को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। ब्रीच के डिटेल्स कैसे हुए, क्या हुए, उसको आरसीए क्या था, आरसीए यानी रूट कॉज एनालिसिस, वो दोबारा नहीं हुए करके प्रिवेंटिव स्टेप्स हमने क्या क्या किए हैं, ये सब ब्रीच डिटेल्स में जाएंगे। मिटिगेशन स्टेप्स यानी उसको वापस नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या किया है वो हमें करना चाहिए। चाइल्ड डेटा ये हमने बात की है। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर ये हमने बात की है। अभी कंप्लायंस में क्या क्या होगा, डीपीबी का एस्टेब्लिशमेंट होगा। दे हैव द पावर्स टू अप्लाई पेनल्टी, दे हैव द पावर्स टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट यानी डिसाइड करेंगे कि आप गलत है, कितने हद तक गलत है, वगैरह वगैरह। वो अपने आप कोई अगर कंप्लेंट किया तो आदेश दे सकते हैं। अगर आपको उनका आदेश पसंद नहीं आया तो आप टीडी सैट करके एक ट्राइब्यूनल है, उसको जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर टीडी सैट का भी निर्णय आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी यहाँ का जो वर्क फ्लो है कि आप पहले फिड्यूशरी से कंप्लेन करेंगे, फिड्यूशरी उसको समाधान नहीं करेगा तो आप डीपीबी पे जाएंगे, डीपीबी से समाधान नहीं हुआ तो आप टीडी सैट पे जाएंगे, टीडी सैट से समाधान नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसका प्रोसेस कैसे है कि कंप्लेंट फाइल होगा, फिर डीपीबी जो है ये पहले इनिशियली रिव्यू करेंगे, प्रिंसिपल और फिड्यूशरी दोनों को हियरिंग देंगे कि आपका क्या कहना है। वो फिड्यूशरी की भी देखेंगे कि आपने कैसे किया है, क्या क्या मिटिगेटिंग रिस्क, मिटिगेटिंग मेजर्स लिए हुए हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन के दायरे में आपने रखा है, ब्रीच कैसे हुआ, वो ब्रीच दोबारा नहीं हो उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस लिए हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगर देखा कि बोर्ड को ऐसा लगा कि आपने कुछ नहीं किया है तो बोर्ड आपको पेनल्टी लगा सकती है। कंप्लायंस का ये रोड मैप हम आगे जाके देखेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ दी। अभी आरबीआई सर्कुलर्स की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा मुद्दा है। क्योंकि जब भी मैं बहुत सारे बैंक से बात किया तो ये एक जनरल फीलिंग ऐसे बैंकों में है कि आरबीआई ने कुछ कहा नहीं है, आरबीआई ने कुछ बताया नहीं है, आरबीआई कुछ सर्कुलर नहीं निकाला। तो अगर ये हम 8 सर्कुलर्स या एडवाइजरीज देखेंगे, एक है साइबर सिक्योरिटी का बेसिक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या ग्रेडेड अप्रोच का, अगर हम सिक्योरिटी का जो सर्कुलर है वो देखेंगे, या एक मास्टर डायरेक्शन ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज देखेंगे, या एक है मास्टर डायरेक्शन ऑफ मैनेजिंग ऑफ आउटसोर्सिंग रिस्क देखेंगे, या मास्टर डायरेक्शन ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी देखेंगे, या मास्टर डायरेक्शन ऑन डिजिटल बैंकिंग चैनल ऑथराइजेशन करके है, या हाल ही में उन्होंने दिया था सीबीएस हैंडबुक फॉर यूसीबीज। उसके अलावा पीएमएलए एक्ट के अंदर है, केवाईसी के अंदर है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड वगैरह जो है उस पे है। ये सभी में जो डीपीडीपी के अंतर्गत जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स लिखे हुए हैं उस पे आधारित सेक्शन वाइज इसमें लिखा हुआ है कि आरबीआई के अभी जैसे ये साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क का सर्कुलर है, वो सर्कुलर में डेटा क्लासिफिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल, डेटा बैकअप वगैरह इसका उल्लेख किया गया है।
डीपीडीपी एक्ट में उसका कहाँ उल्लेख है? यानी भले आरबीआई ने उसका डायरेक्ट उल्लेख नहीं किया है कि ये डीपीडीपी एक्ट के सेक्शन में ये लिखा है और आरबीआई के सर्कुलर का सेक्शन में ये है, फिर भी उसका ये जो कोरिलेशन है वो ये सर्कुलर में है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। सिमिलरली हम ये जो साइबर सिक्योरिटी का ग्रेडेड अप्रोच का सर्कुलर देखेगा, या लेवल 1 2 3 4 की बात की गई, उसमें क्या क्या है, ये सारे चीजें हम अगर देखेंगे तो ये भी मेंशन्ड है डीपीडीपी एक्ट में। अभी आरबीआई ने एक ये जो साइबर सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है उस पे एक 120 पॉइंट का एक एक्सेल शीट भेजी थी सभी बैंकों को, और सभी बैंकों को बोला था कि आपके लेवल के हिसाब से आप कंप्लायंस दे दीजिए। अभी ये अगर हम देखेंगे और उसको वो जो 120 है उसको एक के नीचे एक डालेंगे और उसको नंबरिंग करेंगे, तो ये जो डीपीडीपी एक्ट के जो सेक्शंस है वो सेक्शंस का वो एक्सेल शीट्स का जो नंबर है उससे ये मैपिंग किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का जो हम कंप्लायंस आज भी दे रहे हैं उसका ताल्लुक डीपीडीपी एक्ट के सेक्शन से भी है। डीपीडीपी रूल्स ये जो भी लिखा हुआ है उसका मैपिंग भी वो 120 कंट्रोल्स में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमें समझना चाहिए कि आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से उन्होंने ग्रेडेड अप्रोच के हिसाब से हमें लेवल 1 पे 59 कंट्रोल्स, लेवल 2 82 कंट्रोल्स, लेवल 3 107 कंट्रोल्स, लेवल 4 120 कंट्रोल्स ऐसे डाले हुए हैं। लेकिन डीपीडीपी एक्ट का अगर उसका मैपिंग हम देखेंगे और पहले जैसे हमने उसका जो सेक्शन वाइज उसका जो विवरण देखा, तो सभी 120 कंप्लायंसेस सभी लेवल के बैंक्स को लागू है। यानी हम लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो या लेवल 4 हो, ये कहीं भी हम ये बता नहीं सकते कि हम लेवल 1 में है तो ये डीपीडीपी एक्ट का हमें लागू नहीं है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट एक स्वतंत्र एक्ट है और उसका कंप्लायंस हमें स्वतंत्र देना है और उसका कंप्लायंस हमें स्वतंत्र इंप्लीमेंट करना है। और ये 120 कंट्रोल्स हमें ध्यान में रखने हैं कि ये पूरे के पूरे हमें कंप्लाई करने हैं। ये एक ब्रांच की बैंक हो या सारस्वत जैसे 600 ब्रांच की बैंक हो, सभी को ये 120 कंट्रोल्स लागू हैं। अब हम ये मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी आउटसोर्सिंग या मास्टर डायरेक्शन ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ रिस्क अगर देखेंगे तो इसमें ये जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सभी चीजें डीपीडीपी एक्ट के संदर्भ में भी हैं। यानी वो सेक्शन में वो कहते हैं कि ये जो एमडी यानी मास्टर डायरेक्शन ऑन आईटी आउटसोर्सिंग है उसमें ये चीजें करने गरज की है। सिमिलरली जो रिस्क मैनेजमेंट का सर्कुलर है ऑन आउटसोर्सिंग रिस्क, इसमें भी ये सब चीजें हमें देखने हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हम ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये सर्कुलर्स भी हमें सामने रखने पड़ेंगे और उसका सर्कुलर्स का भी कंप्लायंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स आजकल अभी मुझे लगता नहीं है कि आज जो पार्टिसिपेंट बैंक्स हैं इसमें से कोई भी ऐसी बैंक है जो डिजिटल पेमेंट्स नहीं करते। आरटीजीएस है, एनईएफटी है, एटीएम है या यूपीआई है या आईएमपीएस है, ये सभी बैंक कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स का जो सर्कुलर है या मास्टर डायरेक्शन है इसमें जो लगा हुआ है ये इसका भी मैपिंग है। तो ये सेक्शन जो लिखे हैं 5.8 वगैरह वगैरह, तो ये डीपीडीपी एक्ट में जो लिखा हुआ है ये उसका उल्लेख ये सर्कुलर्स में भी है। ये डिजिटल बैंकिंग चैनल्स ऑथराइजेशन का जो सर्कुलर है जन 2026 का, उसमें से एक नया ऑडिट सभी बैंक्स को करने को कहा गया है कॉल्ड GAICA ऑडिट। ये जो पहला लिखा है GAICA,
आप में से कितने बैंक्स ने किया है या नहीं किया है आप खुद समझ लो। आपको ये करना बहुत जरूरी है। गैप असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, गैप एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, तो ये हमें करना है। और ये आरबीआई कहती है कि जो भी संस्था डिजिटल पेमेंट्स कर रही है उनको ये गैप ऑडिट कर रहे हैं, और टेकॉल की टीम आपको इसमें मदद भी करेगी कि ये गैप ऑडिट करने में। ये जो प्रवाह पोर्टल में डालना है, या प्रवाह पोर्टल में या दक्ष पोर्टल में जो हमें जो कंप्लायंसेस देने हैं वो भी सेक्शन 8.3 में कवर्ड है, या IPv6 के कंप्लायंसेस है, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कंप्लायंस है, या API सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, ये सभी चीजें भी ये जो डिजिटल बैंकिंग चैनल्स डायरेक्शन ऑथराइजेशन का जो मास्टर डायरेक्शन है उसमें ये चीजें कवर्ड है। CBS हैंडबुक अगर हम देखेंगे तो अगर यूनिट बैंक बोलेगी कि हमें ये लागू नहीं है, बट हमारे पास CBS है, तो CBS अगर देखेंगे तो CBS में हम क्या क्या करते हैं ये चीजें भी DPDP एक्ट में करें। और आज अगर हम आज का सेशन के बाद हमें ध्यान में आएगा कि बहुत सारे चेंजेस और बदलाव हमें CBS में भी इनकॉर्पोरेट करने की गरज पड़ने वाली है। तो DPDP एक्ट का कंप्लायंस अगर हम देखेंगे तो CBS रिलेटेड भी है। आगे के अगर हम देखेंगे सर्कुलर्स, तो KYC का मास्टर डायरेक्शन है उस पे लागू है, PMLA का AML या CFT गाइडलाइंस है उस पे है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड इस पे है, अकाउंट एग्रीगेटर यानी डेटा शेयरिंग इस पे RBI का सर्कुलर इस पे भी लागू है, क्रेडिट इन्फो कंपनी यानी हम सिबिल को वगैरह डेटा शेयर करते हैं उसका भी इसमें जिक्र है। फिनटेक के साथ अगर हमने अभी बहुत सारे बैंक्स LOS वगैरह फिनटेक से लेते हैं तो ये सर्कुलर भी लागू है। तो इसमें हमने पूरा सर्कुलर्स का क्रॉस रेफरेंस भी किया है, RBI का फ्रेमवर्क का इम्पैक्ट, UCB का कंट्रोल्स क्या क्या चाहिए, और इसका ओनरशिप कौन है। बहुत सारे डिस्कशन में मुझे बताया जाता है कि ये सब IT का काम है। IT का सिर्फ 18% काम है। ये आगे जाके मैं स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि ये जो पूरा कंप्लायंस का जो फ्रेमवर्क है इसमें IT का बहुत कम काम है। ये ज्यादा से ज्यादा यानी 82% काम ये बिजनेस वालों का है। यानी जो भी आपके बैंक में बिजनेस है, जो भी ऑपरेशन टीम है, क्रेडिट टीम है, कंप्लायंस टीम है, ये उन्होंने DPDP का एक्ट का कंप्लायंस देखने की गरज है। IT टीम सिर्फ उसका टेक्नोलॉजी रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन या सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखेगी। अगर आप पूछेंगे कि DPDP एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो ये एक स्लाइड पूरा बताता है कि ये एक स्लाइड इज द एंटायर DPDP एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर थोड़ी देर पहले आपने कुछ तो कहा था कि ये सब काम सीरियस का ही है, वो थोड़ा सा जाना तो कौन सा काम सीरियस का है ऑपरेशन? हम आएंगे। अभी ये जो पर्पल में है ना ये IT का काम है। ये प्रोटेक्शन जो लिखा हुआ है ना ये IT का काम है। यानी डेटा इंक्रिप्शन रखने का, डेटा कंट्रोल एक्सेस रखने का, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफ्रा सिक्योरिटी रखने का, एप्लीकेशन सिक्योरिटी रखने का, फिजिकल सिक्योरिटी डेटा सेंटर का रखने का, डेटा एनोनिमाइजेशन करने का। एनोनिमाइजेशन यानी अभी आप UAT करते हैं तो 99.9% बैंक्स में आपका UAT किस पे करते हैं, लाइव डेटा का एक भाग आप सेपरेट करते हैं उस पे ही करते हैं। ये एक्ट के अंदर ये नहीं कर सकेंगे। आप लाइव डेटा को सिर्फ UAT एनवायरनमेंट में लेके आप UAT नहीं कर पाएंगे, उसको आपको एनोनिमाइज करना है। एनोनिमाइज यानी यू कैनॉट हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द अकाउंट होल्डर एंड हिज डिटेल्स। उसको सुडोमाइजेशन भी बोलते हैं, यानी यू शुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई अ कस्टमर। तो ये जो प्रोटेक्शन का जो वर्टिकल है ये सिर्फ IT का काम है। उसमें डेटा डिस्कवरी वगैरह सब करेंगे, लेकिन ये सभी चीजें हैं ये बिजनेस डिसाइड करेगी
ये जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस अगेन बिजनेस डिसाइड करेगा कि किसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेटा प्रोटेक्शन के क्या पॉलिसीज होने चाहिए, क्या क्या एसओपीज करने चाहिए, कौन से थर्ड पार्टी वेंडर्स रहेंगे, थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट सबसे महत्व का चीज है इसमें। एक आप एक सिनारियो समझिए, एक ऐसे नाम मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, इस पे कोई किसी की आशंका नहीं कर रहा हूं। सीबीएस है, सीबीएस वेंडर आपको एएसपी पे कर रहा है, तो यहाँ कितने वेंडर्स आ गए? सीबीएस वेंडर आ गया, डेटा सेंटर का वेंडर आ गया, बराबर है। फिर आपका पेमेंट स्विच है, शायद सीबीएस वेंडर देगा या शायद आपका पेमेंट स्विच दूसरे वेंडर से है, तो और एक वेंडर आ गया। फिर वो स्विच वेंडर का आप कार्ड आप वो बनाएगा या वो और किसी के साथ से बनवा के लेगा, तो और एक वेंडर आ जाएगा। सो आपने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया है? एएसपी वेंडर से, लेकिन इंटरनली कितने वेंडर्स आ गए? 4 वेंडर्स आ गए। तो आपका जो रिस्क असेसमेंट है ये चारों वेंडर्स के साथ करना पड़ेगा। अभी ये जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स है ये चारों वेंडर्स के साथ होने गरज है, क्योंकि ये चारों वेंडर्स के यहाँ से अगर लीक हो गया, जवाबदारी आपकी है। यानी अगर आप ये समझेंगे कि आज 90% हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर का जो कामकाज है ये सब आउटसोर्स्ड है। हमने एएसपी पे गए हैं या करे, खुद का डेटा सेंटर वाले बहुत कम है, लेकिन जो भी हम करेंगे ये थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस करना है, थर्ड पार्टी एसएलएस का जो भी क्लॉजेस है उसमें हमको ऐड करना है, थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट करना है, थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है। तो ये सभी चीजें हैं, ये सब गवर्नेंस के फैक्टर्स है। डेटा डिस्कवरी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेटा आपका कहाँ कहाँ है, ये डेटा कहाँ कहाँ है किसे मालूम पड़ेगा, बिकॉज ये सब चीजें सीरियस रिलेटेड नहीं है। आपका लोन प्रोसेसिंग के लिए आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट लोन का डिटेल्स लेता होगा, वो लोन डिपार्टमेंट में जाएगा, या आपका और कोई डिपार्टमेंट दूसरा डेटा लेता होगा, या आप मार्केटिंग के लिए और कोई डेटा लेता होगा, वगैरह वगैरह। तो ये डेटा कहाँ कहाँ है? अब ये जब भी मैं प्रश्न पूछता हूँ मुझे बताया जाता है कि हमारा डेटा सिर्फ हमारा डेटा सेंटर में है। गलत उत्तर है। डेटा सेंटर इज वन पार्ट। डेटा सेंटर में है, आपका डेस्कटॉप में है, आपका लैपटॉप में है, आपका मोबाइल फोन में है, आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें है, आपका ईमेल में है, सभी जगह है। तो वहां से भी लीक न हो ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो ये डेटा डिस्कवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज। फिर डेटा आइडेंटिफिकेशन, कौन सा डेटा है, कहाँ वापर में आएगा, कैसे वापर में आएगा, उसका पर्पस क्या है, वो सेंसिटिव है, क्रिटिकल है, क्या है उसका क्लासिफिकेशन, कहाँ स्टोर होगा, कहाँ कितने दिन स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, वो एनक्रिप्ट होगा कि नहीं। डिस्पोजल, अभी डिस्पोजल कैसे आएगा? डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है कि जब भी आपका पर्पस खत्म हो जाएगा तो आपको वो डेटा डिलीट करना है। तो ये आप स्टोर कर रहे हैं तो आप स्टोर किया वो डेटा डिलीट करते हैं क्या? आंसर इज नो। करना है क्या? आंसर इज पार्टली नो, पार्टली यस। पार्टली नो क्यों? क्योंकि हमें आरबीआई कहता है 8 साल रखो, इनकम टैक्स कहता है 12 साल रखो, पीएमएलए कहता है वो अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो उतना टाइम रखो, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो जब तक उसका केस क्लोज नहीं होता तो पीएमएलए आपको वो रखने को कहता है। तो जब तक वो सॉल्व नहीं होता या उसका रिटेंशन टाइम खत्म नहीं होता आप डिलीट नहीं कर पाते। लेकिन जब भी उसका वो रिटेंशन समय खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली जहां जहां वो डेटा है वहां से आपको डिलीट करना है। दैट इज डेटा डिस्पोजल। डेटा मैपिंग हम आप आगे जाके देखेंगे डेटा मैपिंग का महत्व क्या है, यानी डेटा क्या है, कैसा है, कहाँ वापरना है, कौन से एक्टिविटी से जुड़ा है, कौन से कंसेंट लिया है कि नहीं, वो सब आगे हम जाके देखेंगे। फिर डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट एनालिसिस। अभी ये सभी जब चीजें करती हैं तभी हम क्या करते हैं, कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने को क्या कहते हैं? नोटिस मैनेजमेंट। फिर आएगा कंसेंट मैनेजमेंट, फिर आएगा राइट्स मैनेजमेंट,
फिर रहेगा ब्रीच मैनेजमेंट. ब्रीच मैनेजमेंट इज एज गुड एज आपका साइबर सिक्योरिटी का इंसिडेंट मैनेजमेंट. फिर कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट, दैट इज ग्रीवेंस मैनेजमेंट. अभी ये चीजें आप खुद कर सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं. तो आपका जो प्रश्न था आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम है, आईटी डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ये प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी और डेटा का फिजिकल प्रोटेक्शन, एनक्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन, स्यूडोमोनाइजेशन. क्योंकि ये बाकी सभी चीजें कौन देखेगा? बिजनेस देखेगा. विल कम टू इट. इन दिस एंटायर जर्नी, ये रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी इज द फाउंडेशन ऑफ. जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा, कंसेंट मैनेजर दिया, मेरा काम हो गया. बिल्कुल गलत. रोपा अगर जब तक नहीं है, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग, आपके पास नहीं है, तो आप डीपीडीपी एक्ट का कंप्लायंस नहीं कर सकते. डीपीडीपी एक्ट रोपा में क्या करेंगे, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं. जैसे एक सादा उदाहरण लेंगे, अकाउंट ओपनिंग. अकाउंट ओपनिंग का पर्पस क्या है, कौन सा डेटा ले रहे हैं, क्या क्या डेटा ले रहे हैं, कहाँ स्टोर करेंगे, कब डिलीट करना है, कौन प्रोसेस करेगा, कहाँ प्रोसेस करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा. ये सब चीजें ये रोपा के रजिस्टर में आएंगे. फिर कौन से उस चीज के लिए आपको कंसेंट लेना है, वो कंसेंट लेने के लिए हैव यू कम्युनिकेटेड दिस टू द कस्टमर, यानी नोटिस दिया हुआ है क्या. नोटिस दिया हुआ है तो कौन से नोटिस के लिए कौन सा कंसेंट आया है. क्योंकि विदाउट कंसेंट यू कैन नॉट प्रोसेस. दिस इज द एक्ट. कंसेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. और ये है कि नहीं आप कैसे मालूम करेगा, रोपा विल टेल यू. और जो आपका सीबीएस का इंटीग्रेशन है ये रोपा से होना चाहिए कि जब भी आप कोई एक्टिविटी प्रोसेस करोगे तभी उस एक्टिविटी के लिए ये चाहिए क्या, कंसेंट चाहिए क्या. और वो कस्टमर का कंसेंट नहीं होगा तो वो एक्टिविटी आप सीबीएस में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. तो ये सब चीजें हमें करनी है. और उस किसी को कुछ पूछ रहे हैं? सर रोपा के लिए कुछ टूल है ऐसा, सॉफ्टवेयर है? टूल नहीं हो सकता. हमें ये बनाना पड़ेगा. मैं ये सेशन होने के बाद आपको एक सैंपल रोपा दिखाता हूँ. ओके सर, ओके. यानी ये जो राइट में दिखाया हुआ है ना, ये आपका रोपा का आइटम्स है. यानी जो रोपा बनेगा ना, ये राइट का प्रोसेसिंग एक्टिविटी, फिड्यूशियरी डिपार्टमेंट, पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग, वो लीगल बेसिस यानी लेजिटिमेट यूज में है क्या, कैटेगरी ऑफ पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है क्या, डेटा प्रिंसिपल की कैटेगरी, क्योंकि अगर एसडीएफ है तो उसका अलग प्रोसेसिंग होगा, वगैरह वगैरह. यानी आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग बिकॉज़ अदरवाइज वी विल नॉट कंप्लीट दी. तो ये जो पूरा जो यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा आपका रोपा में आएगा. फिर एज अ बैंक, ये दिस इज इंडिकेटिव इलस्ट्रेटिव लिस्ट. कस्टमर ऑनबोर्डिंग, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्रोसेसिंग, टर्म डिपॉजिट प्रोसेसिंग, लोन अकाउंट प्रोसेसिंग, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, NACH, RTGS, NEFT, HR. स्टाफ इज ऑल्सो अ डेटा प्रिंसिपल. सिर्फ कस्टमर नहीं, स्टाफ डेटा बैंक के पास है तो उनका डेटा सेफ रखने का बैंक की जिम्मेदारी है. सीसीटीवी वेरी इंपॉर्टेंट. सीसीटीवी का फेशियल रिकग्निशन हो सकता है तो उसका भी आपको उसको रोपा के अंदर डालना पड़ेगा. फिर ग्रीवियंस कंप्लेंट्स, मार्केटिंग, क्रॉस सेलिंग, तो ये पूरा. फिर उसका रिटेंशन लिमिट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कस्टमर ऑनबोर्डिंग 10 साल वगैरह वगैरह. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस. ये विल शेयर दिस पीपीटी विद ऑल. फिर डेटा प्रोसेसर का महत्व क्या है. अभी ये जो मैंने कहा ना कि अगर आपके पास कंसेंट नहीं है तो आप प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ क्या कहती है, प्रोसेस ओनली एज इंस्ट्रक्टेड. ओनली एज इंस्ट्रक्टेड यानी क्या, जो कस्टमर ने बोला है कि ये मेरा पर्पस है और ये मैंने अनुमति दी है उतना ही प्रोसेस करो.
नो अनऑथराइज्ड सब प्रोसेसिंग, यानी अगर आपके प्रोसेसर ने किसी थर्ड पार्टी को सब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसकी अनुमति राइटिंग में आपसे लेने चाहिए, और उस थर्ड पार्टी को क्या क्या डेटा शेयर करना है उसका एग्रीमेंट आपको बनाना है। सो ये सब प्रोसेसिंग इज बिकमिंग अ वेरी वेरी सीरियस थिंग इन डीपीडीपी एक्ट। मैंने एक आपको ये बताया कि एएसपी है, एएसपी का सीबीएस है, लेकिन सीबीएस इज होस्टेड ऑन अ डेटा सेंटर। सो सीबीएस का और डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट आपको पता नहीं है, लेकिन अभी जाके आपको वो जो क्लॉजेस है वो आपको डेटा सेंटर में भी डालने पड़ेंगे, डेटा सेंटर का जो भी है उससे, क्योंकि वो इज हैंड होस्टिंग योर डेटा, द फिजिकल होस्टिंग इज डन बाय डेटा सेंटर। ऑडिट इंस्पेक्शन राइट्स, जैसे आरबीआई कहते हैं कि राइट टू ऑडिट, सो सिमिलरली डीपीडीपी एक्ट आल्सो सेज राइट टू ऑडिट। हेलो और जी सर, आपको पता है डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते, तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन मैंने किसी लोन पर किसी कस्टमर का डेटा लिया तो मुझे चारों सीआईसी कंपनी में तो शेयर करना मैंडेटरी। वो लेजिटिमेट यूज के अंदर आता है, सीआईसी को देना इज नॉट कवर्ड अंडर कंसेंट। ओके फाइन। यानी अगर, लेकिन आप एलओएस के लिए अगर कोई फिनटेक को देते होंगे तो आपको परमिशन लेना है, परमिशन नॉट फ्रॉम आरबीआई, परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी जो Okay. जिस डेटा लेता है उसका परमिशन, उसको बोलना पड़ेगा कि वी आर शेयरिंग योर डेटा विद अ थर्ड पार्टी। ओके फाइन, थैंक यू। हमने देखा कि हेलो हेलो हाँ जी सर, अपन जो डेटा हर 15 दिन में सिस कंपनी को अपन भेजते हैं, क्या उनसे भी एग्रीमेंट लेना है? नहीं, क्यों अभी नहीं? जो पहले का स्पीकर पहले जो क्वेश्चन उन्होंने वही, सीआईसी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और दैट इज कवर्ड अंडर लेजिटिमेट यूज। सो सीआईसी को जो डेटा जाता है उसके लिए अनुमति लेने की गरज नहीं है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर है जो आपका लोन डेटा प्रोसेस कर रहा है तो उसको आपको अनुमति लेनी चाहिए कस्टमर की। दूसरा एक क्वेश्चन है हाँ जी सर जी, जो भी हम की फाइल अपलोड करते हैं, जैसे कि हम सीए के पास देते हैं, उसी के जरिए अपलोड हो जाता है एसेट का फाइल। अगर कहीं से अगर डेटा लॉस्ट हो गया या कुछ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? बैंक में। और अगर आप सीए को शेयर कर रहे हैं तो उसकी परमिशन आप कस्टमर से लेनी है कि आप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सीए से शेयर करने का ये लेजिटिमेट यूज नहीं है, इसको कंसेंट के दायरे में आता है। हेलो सर, हम लोन के जो फाइल्स आते हैं ना सर, लीगल के लिए भेजते हैं सर, वो फिर इसके लिए कॉन्सेंट जरूरी है क्या? जरूरी है। आप कौन से लॉयर को भेज रहे हैं वो लिखने की गरज नहीं है, लेकिन आपका जो भी कंसेंट ले रहे हैं उसमें आपको लिखना चाहिए कि यू विल बी शेयरिंग दिस डेटा फॉर, अभी जैसे वैल्यूएशन है या आपका सर्च रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, तो एक्टिविटी के लिए वी आर आउटसोर्सिंग इट, और वो आउटसोर्सिंग के लिए हम चेक करेंगे करके उसकी सम्मति पहले ही लेनी चाहिए। सी कंसेंट बाद में नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी करने के पहले होनी चाहिए। सर इसके लिए जो फॉर्म्स अपन कस्टमर से ले रहे हैं ना, वो पूरे रिलैक्स करना चाहिए, पूरा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है, लोन फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा सर। एडिशनल लगा सकते हैं वेयर वी आर यूजिंग डेटा, ऐसा टिक बॉक्स लगा फॉर एग्जांपल लीगल को दे रहे हैं, हम एक वैल्यूएशन को दे रहे हैं, बाद में साइन चलेगा, ब्लैंकेट एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेने में कुछ हर्जा नहीं है, लेकिन उसका डेट टाइम स्टैम्प सिस्टम में होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये जो भी आप कंसेंट लेंगे उसका रिकॉर्डिंग यानी उसका नोट ये सिस्टम में होने चाहिए। क्यों?
अब जैसे एक सादा उदाहरण देता हूँ, यानी हमको समझ में आएगा। एक कोई कस्टमर स्टॉक पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देता है और Right. उसके बाद अगर पेमेंट हो गया तो जिम्मेदारी बैंक की होती है। Okay. तो स्टॉप पेमेंट जब देता है तो स्टॉप पेमेंट का जो डेट एंड स्टैम्प ये सिस्टम में होता है, तो उसके Right. पहले अगर कोई प्रोसेसिंग हुआ तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसके बाद अगर कोई प्रोसेसिंग हुआ तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। सो सेम थिंग, भी समझो कोई कस्टमर ने कंसेंट विड्रॉ किया और कंसेंट विड्रॉ होने के बाद बैंक ने इसको प्रोसेस किया, देन बैंक इज रिस्पॉन्सिबल एंड कैन बी टेकन टू फॉर डीपीडी का ये कंप्लेंट के लिए। तो डेट टाइम स्टैम्प अगर बेस्ड आपका कंसेंट रहेगा तो ये डेट टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करने की बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो अब ये कंसेंट का, जैसे मैंने पहले कहा था, इट हैज टू बी स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनकंडीशनल, अनएम्बिगुअस, विड्रॉएबल एंड ऑडिटेबल। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ से कर सकते हैं? सीबीएस से कर सकते हैं, पोर्टल से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ हमें लगेगा, ये यहाँ उसका लगेगा, उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों? कि वो सभी चीजों के लिए आपके पास अनुमति है कि नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग के ऑब्लिगेशंस, तो ये सभी चीजें हम लेजिटिमेट यूज का रहेगा तो कंसेंट कहाँ लेना है वो हमें मालूम होना चाहिए, लेजिटिमेट यूज कहाँ का है वो हमें मालूम होना चाहिए, टेक्निकल सेफगार्ड्स क्या क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये जो आप सर पूछा था उसका ये विवरण है कि रोपा का ये इंटीग्रेशन ये बहुत महत्व का है कि आपने जो भी रोपा बनाया उसका नोटिस से संबंध, जो रोपा को कंसेंट चाहिए उसका नोटिस कस्टमर को दिया क्या, नोटिस देने के बाद उसका कंसेंट आया था, कंसेंट आया तो उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। अगर कंसेंट नहीं है तो प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो ये जो लिंक है, तो ये लिंकिंग आपका जो भी एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस में आपको डालना पड़ेगा। एक साधा उदाहरण देता हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार के लिए एसएमएस भेजते हैं, वो एसएमएस ट्रिगर कहाँ से करते हैं? कोई भी एक सिस्टम से। अगर आपके कस्टमर ने मार्केटिंग के लिए मना किया हुआ है, उसको परमिशन नहीं दिया है, तो वो जब आप ट्रिगर करते हैं तो सेंड दैट प्रमोशनल एसएमएस, तो अभी आप नहीं कर पाएंगे। तो भेजने के पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा सिस्टम में से, तो उसका कंसेंट है कि नहीं है। नहीं है तो वो कस्टमर को वो प्रमोशनल मैसेज नहीं भेजना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम ऑपरेशनल ही हमें चेंजेस करने पड़ने वाले हैं। सो फॉर अ कस्टमर, उसका जर्नी इज राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टू अकाउंट क्लोजर। ऑनबोर्डिंग में उसका अकाउंट ओपनिंग करेगा, फिर नोटिस आएगा, फिर कंसेंट आएगा, फिर केवाईसी और डेटा कलेक्शन आएगा, डेटा प्रोसेसिंग आएगा। बीच में वो राइट्स पूछ सकता है कि मेरे अधिकार में क्या क्या है, मुझे इंफॉर्मेशन दो। फिर अकाउंट क्लोज होने के बाद उसका डेटा रिटेंशन लिमिट के हिसाब से रखना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप हम देखेंगे, this will come to later on. डेटा प्रिंसिपल राइट्स, राइट्स क्या क्या है इसका थोड़ा सा, राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज राइट टू एक्सेस। उसको क्या क्या इसके लिए रोपा में, क्योंकि रोपा में ये पूरा रहता है कि उसका कौन सा एक्टिविटीज है कस्टमर के, और वो एक्टिविटी रिलेटेड क्या क्या डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। 30 दिन के अंदर उसका जवाब हमें देना है। अगर 30 दिन के अंदर हमने जवाब नहीं दिया, then we are likely to be taken to DPB for complaint. Right to correction, right to deletion, that is erasure, right to nomination, right to grievance redressal, right to withdraw consent. Withdraw consent है कोई भी चीज which is not legitimate use छोड़ के कोई भी अगर उसने consent दिया है
तो उसको कंसेंट विड्रॉ करने की सहूलत है और 72 घंटे के अंदर उसको ऑनर करना चाहिए और उसका प्रोसेस बंद होना चाहिए। अभी समझो कोई कस्टमर ने विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट दे दी और थोड़े समय के बाद उसको लगा कि नहीं, मुझे वो चाहिए था, वो दोबारा दे सकता है, बट विल बी अ न्यू फ्रेश कंसेंट। अब एक चीज हमें ध्यान में रखने हैं कि लेगल आज जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, सभी कस्टमर्स का कंसेंट हमें वन टाइम बेसिस पे देना है। तो इट इज नॉट प्रोस्पेक्टिव कि 13 मई 2027 के बाद हमें कंसेंट लेना है, नहीं, ऑलरेडी लागू है। सो जो भी कंसेंट और जो भी कस्टमर्स आज ऑनबोर्डेड हैं, ये सभी के कंसेंट हमें रिकॉर्ड करने हैं, बेसिस में करेंगे लेकिन देने हैं। अब ये प्रश्न आता है कि अगर कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है या कंसेंट नहीं देता, क्या करेंगे? तो जो आइटम के लिए हमारे पास कंसेंट नहीं है, वो प्रोसेस नहीं करने का। जो लेजिटिमेट के अंदर है, वो प्रोसेस करने की पाबंदी नहीं है। तो जो बैंकिंग का जो रिक्वायरमेंट है, वो विदाउट कंसेंट कर रहे, तो बैंकिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो विदाउट कंसेंट भी हम कर सकते हैं। जो कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते, दैट एक्टिविटी कैन बी डन बिकॉज वी डू नॉट हैव कंसेंट। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो अभी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन का देखेंगे तो क्या करना चाहिए? तो पहले फ्रॉम मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फेज 1 में एक डीपीओ या जो भी इंटरनल आदमी कोऑर्डिनेटर हम कहेंगे वो होना चाहिए। एक बोर्ड की और मैनेजमेंट की एक स्टीयरिंग कमेटी होना चाहिए। हमको एक, हाँ जी हाँ पूछिए। सर, जो सीसो है बैंक में, उसको डीपीओ अपॉइंट कर सकते हैं? सीपीओ को नहीं करना चाहिए ऐसे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वही मैं कह रहा हूँ, सीपीओ डीपीओ करके रोल नहीं देना चाहिए, ऐसे एक्ट में कहीं लिखा नहीं है। ओके। सीसीओ का फंक्शनैलिटी अलग है, डीपीओ का फंक्शनैलिटी अलग है। तो अगर दोनों फंक्शनैलिटी कर सकते हैं तो एक ही आदमी दोनों फंक्शनैलिटी कर सकता है, कुछ पाबंदी नहीं है कि आप सीसीओ को डीपीओ नहीं बना सकते। तो मोबाइल एंड गवर्न, तो ये पॉलिसीज वगैरह सब ये पहले करेंगे। डेटा मैपिंग जो हमने वो जो 4 पिलर्स जो देखा था उसमें था डेटा डिस्कवरी, डेटा इन्वेंटरी, डेटा क्लासिफिकेशन, ये सब ये फेज 2 में जाएगा। फेज 3 में डिजाइन कंट्रोल, यानी आपका कैसे होना चाहिए, आपका डेटा राइट्स फुलफिलमेंट प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल्स कैसे करेंगे, ब्रीच मैनेजमेंट होगा क्या करेंगे, ये सब आएगा। फिर उसका इंटीग्रेशन सीबीएस से या उसका अलग अलग वेंडर से उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फिर 4 में आ जाएंगे। फिर क्या कहते हैं उसको, डीआर ड्रिल नहीं कहेंगे, डमी ड्रिल, यानी ट्रायल, यूएटी करेंगे आप फेज 5। और ये सब होने के बाद आपका अगर कोई प्रोसेस में करना है, उसको सुधारना है तो सुधार करेंगे। एंड बिफोर गोइंग लाइव यू हैव टू डू सब चीजें। सो ये 6 चीजें हमें करने हैं टू गो लाइव। गवर्नेंस फर्स्ट, इन्वेंटरी बिफोर नोटिस। इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या एक्टिविटीज है और वो एक्टिविटीज के लिए क्या क्या डेटा ले रहे हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है, ये आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। एविडेंसेस, सबके एविडेंसेस रखने बहुत मतलब का है, क्योंकि जब भी ऑडिट होगा तो आपको अभी एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन आरबीआई का जो साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स का जो एविडेंसेस है वो मैंने कई बैंक से देखे हुए हैं। जैसे डीएलपी, आपने डीएलपी किया है क्या किया है,
फायरवॉल में टिक मार्क किया है। अभी फायरवॉल में टिक मार्क करना इज ओके, यानी कंप्लायंस देने के लिए दिया है, but is it actual compliance with DPDP? Answer is no, because DPDP asks for demonstrable compliance, कि आपको demonstrate करना चाहिए कि आपने compliant है करके। तो ये चीजें अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़े ऐसे रहेंगे जो एक के बाद एक आएंगे, वो एक साथ नहीं कर, कोई टास्क आपके सीक्वेंशियल, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सीक्वेंशियल है। थोड़े टास्क है ये जो आप सीक्वेंशियल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इंडिपेंडेंटली ये पास भी कर सकते हैं। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सीक्वेंशियल करेंगे, कौन से पैरेलल करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हमारा टारगेट डेट क्या है, मार्च 2027। अभी मार्च 2027 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल में हम टेस्टिंग करेंगे। अगर हम मार्च एंड तक देखेंगे तो टेस्टिंग करने की टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर गोल लाइव आरबीआई ये ईपीवी बोला कि टू गो लाइव फ्रॉम 13 मई और देयर इज नो एक्सक्यूज, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो इसका ये विवरण है, अभी समय का पाबंदी है तो थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। असेसमेंट करना बहुत जरूरी है आज के, और ये गैप असेसमेंट क्यों करना चाहिए कि जो डीपीबी में, डी प्रोटेक्शन एक्ट में अपेक्षित है, और आज हमारी इतनी तैयारी है कि सामने जाने के लिए होना चाहिए कहाँ कहाँ हमें सुधार करनी चाहिए। सो ये सभी चीजें हम गैप असेसमेंट के बाद करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बनाएंगे कि ये पूरा इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन सा करेगा, रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, हु इज टू बी इन्फॉर्म्ड, हु इज टू बी कंसल्टेड। तो ये सारा चीज हम बना के हम तैयार रखेंगे। पॉलिसीज, हमारे जितने पॉलिसीज लगते हैं वो पॉलिसीज का सेट करेंगे, बोर्ड, बैंक के बोर्ड से लेंगे, डेटा रिकवरी, ये सब हमें भी बाकी। तो ये जो पूरा आइडेंटिफिकेशन करना है, जो भी हमारा क्लासिफिकेशन करना है, ये सभी चीजें हमें करनी है। बिलीव मी, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज इज ट्रिमेंडस। ऐसे अभी बहुत सारे बैंक्स ऐसे फीडबैक आ रहे, मई 27 में करना है, क्या है, आप देखो स्कोप क्या है, फिर आपको समझा कि अभी से हमको उसका तैयार करने हैं, कंसेंट तैयार करना है, कंसेंट नोटिस तैयार करने हैं, किस किस चीज के लिए कंसेंट लेने हैं वो हमें करना है, कंसेंट रजिस्टर लिखना है, तैयार करना है कि कौन से चीज के लिए कंसेंट था, कौन से चीज के लिए कंसेंट नहीं था, क्योंकि उसका हमारा प्रोसेस नहीं, जहाँ हम प्रोसेस कर रहे हैं वो हमें लिंक, रिटेंशन हमारा खत्म हो गया, डिलीट डेट, डेटा में क्या क्या आता है, उस पे कंट्रोल्स हमने क्या क्या डाले हुए हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स क्या होने चाहिए, क्या क्या रिस्क असेसमेंट करने चाहिए, वो हमने किए हैं क्या, ये पूरा चीज डिजाइन कंट्रोल में आएगा। फिर ये सब हमारे जो टूल्स है या जो भी हमारे पास है उससे हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फायरवॉल्स है, वो फायरवॉल्स में ये डेटा हम सॉक सिम चलाते हैं, तो हम सॉक सिम में जनरल करते हैं, फायरवॉल लेते हैं, सर्वर के फायरवॉल लेते हैं, फायरवॉल के लॉग्स, सर्वर के लॉग्स लेते हैं, एंटीवायरस के लॉग्स लेते हैं। एडिशनली लेना हमारा डेटाबेस लॉग्स लेने पड़ेंगे, पिम्प लॉग्स लेने पड़ेंगे, डेटा एक्टिविटी मॉनिटरिंग अगर हम के लॉग्स लेने पड़ेंगे। ये सभी चीजें जब ये सॉक्स में जाएगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि एक्सेस को करना है क्या, और अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है तो उसको मैं बंद कैसे करूं। तो यानी टेक कॉल बहुत बड़ा रोल होने वाला है। UAT, this done by
ये पूरा यूएटी करना है, तेरे उदाहरण दे रहा हूँ अकाउंट ओपनिंग का, लोन प्रोसेसिंग, अभी एक साल पूछा हमें लोन अकाउंट ओपनिंग करना है, लोन अकाउंट पूरा लाइफ साइकिल, जब से वो कस्टमर प्रपोजल देता है तब जब तक उसका लोन क्लोज नहीं होता, वो पूरा लाइफ साइकिल में कौन सा डेट कब यूज होगा, कब तक उसका प्रोसेस होगा, कहाँ प्रोसेस होगा, कौन कौन करेगा, ये सब चीजें, और उसका हमको यूएटी करना पड़ेगा। सो जैसे हम सीएस का यूएटी करते थे वैसे डीपीडी रिलेटेड का पर्पस, रोपा, कंसेंट, नोटिस, प्रोसेस, चीजें अपने को यूएटी भी करना वाला है। फिर ऑनगोइंग मैट्रिक्स यानी अब मैट्रिक्स जो है यानी कितने कंप्लीट है, कितने रिजॉल्व हो गए, कितने टाइम हो गए, इंफॉर्मेशन पूछा, कभी पूछा, कैसे पूछा, कितने टाइम उसको जवाब दिया, ये सब, क्योंकि ये सब चीजें का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको रिकॉर्ड में रखना है, is going to play a very important part। जैसे हमने आज तक हम आईएएस ऑडिट करते थे, ईडी ऑडिट करते थे, वीएपीटी करते थे, अभी हमको गाइका भी करना है, डीपीआईए भी करना है, और आईएएस ऑडिट के अंदर ये भी ऐड करना है, ये जो डीपीटेड पार्ट्स है को ऐड करने हैं। तो एक किसके लगेगा कभी शुरुआत करने की, कब एंड हो जाएगा, उसके मैंने चार्ट बनाया था कि अज्यूमिंग क्या हम जून में है तो अब एक महीने, अभी हमको अगले मई तक तो कंप्लीट करना ही है, वी लाइक इट और नॉट, वो हिसाब से ये शॉर्ट हो जाएगा। भी कौन से एक्टिविटीज हैं जो हमें करने हैं, तो 617 एक्टिविटीज मैंने मैप किए हुए हैं कि डीपीडीपी एक्ट में कौन से डोमेन है, तो एक प्रोटेक्शन का है, कंप्लेंट का है, मॉनिटरिंग का है, असेसमेंट का है, वगैरह वगैरह वगैरह, और ये टोटल एक्टिविटीज का ब्रेक है, और वो परसेंटेज है, और कौन से डिपार्टमेंट्स इस पे देखेंगे, तो ये सभी चीजें हमें भी देखने हैं कि कौन से टीम्स हमें डालने पड़ेंगे, बैंक के डिपार्टमेंट्स कौन से देखेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि पूरा 17 ठीक है, बाकी पूरा ये इतर डिपार्टमेंट्स में स्प्रेड आउट है, 82% इज स्प्रेड आउट अमंगस्ट ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स, उसमें से क्या क्या है राइट में लिखा हुआ है, तो एक्टिविटीज हमें देखने हैं, उसका कंप्लायंस भी ठीक से हो रहा है कि नहीं वो हमको देखना है, वो डिपार्टमेंट को देखना है। गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक, जैसे हम एक्टिविटी फॉर्म वैसे एक भी करती, और वो सब इसका ओवरसाइट रखे, वो एक होना बहुत जरूरी है। सो विल 5 लेयर्स, और उस क्या देखेंगे, गवर्नेंस है, अकाउंटेंसी है, ऑपरेशन है, सिस्टम टूल्स का प्रिंसिपल है, ये सब चीजें हम देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल रहेगा, ये रोल रहेगा, अप्रेजल टीम्स का रोल रहेगा, यानी इसी क्या है, दिस इज अ कोई एक टीम का, कोई आदमी का, डीपीओ का ये काम नहीं हो, और होनी नहीं। क्वार्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो हर क्वार्टर का ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये जब भी हम आपको शेयर करेंगे उससे हैं कि क्या क्या इसमें आपको ये करना है। सो तो इसका मैट्रिक रोपा में क्या आएगा, मैनेजमेंट में क्या आएगा, कंसल्ट में क्या आएगा, प्रोसेसिंग में क्या आएगा, उसका भी एक सेक्शंस है, अलग सेक्शन है। सेक्शन 8 डेटा एक्यूरेसी, अभी डेटा एक्यूरेट नहीं हुआ 50 करोड़ तक का डेटा, यानी खत्म हो गया, मेरा जो
लेजिटिमेट यूज रिटेंशन पीरियड, यानी आरबीआई ने कहा या इनकम रिटेंशन पीरियड भी मैं डेटा रहा हूँ तो भी का फाइन है। डेटा प्रोसेस लायबिलिटी, डेटा प्रोसेसर ने कुछ गड़बड़ की तो डेटा फिड्यूशियरी करके 50 करोड़ फाइन है। ये ग्रीवियस मैकेनिज्म यानी कंप्लेंट्स का उत्तर देने में मैंने विलंब या एक समय उत्तर नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 50 करोड़ तक का फाइन है। अगर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स पर प्रोटेक्शन का जो था ना, उस पर कोई दिलगीरी है अगर यानी ठीक से नहीं और वहां से कुछ डेटा लीक हो गया तो 100 करोड़ तक का। ब्रीच नोटिफिकेशन यानी हुआ, एक मजेदार किस्सा कहता हूं। अभी आरबीआई हमसे डेटा डार्क वेब पे जो होता है उसका विवरण देके देती है, उधर एटीएम कार्ड्स आपके बैंक के ये फलाना 50 डार्क वेब में। जनरली हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, कार्ड्स को ब्लॉक करो और नए कार्ड्स इशू करो। दिस इज एज पर डीपीडी एक्ट कहती है, आरसीए किया रूट कहां से और बंद नहीं हुआ होना चाहिए करके क्वेश्चन किया है और वो बीच हुआ करके अपने डीपीबी को इन्फॉर्म किया क्या कस्टमर। अगर नहीं किया तो 200 करोड़ तक का अलग है। हेलो सर, हेलो सर, कई ऐसा होता है वेब पे एक्सपायर कार्ड देता है तो उसमें भी की जिम्मेवारी रहती है। जब दोबारा पूछिए। कार्ड होते हैं जो अवधि खत्म हो गई है उनका डेटा मिलता है। सी एक चीज है जो हाँ वही कह रहा हूँ, आपका उत्तर दे रहा हूँ। वो लाइव नहीं हो कस्टमर पर्स डेटा यानी उन्हीं डेटा जिससे एक कस्टमर आइडेंटिफाई हो सकता है कोई भी हो, वो अगर डार्क वेब मिला तो जिम्मेदारी की है हो तो यानी कोई डेटा पर्सनल डेटा कोई रहेगा तो बैंक से ही लीक हुआ कैसे पता? आरसीए करना है ना, रूट एनालिसिस करना। अब कल आपको आरसीए फॉरेंसिक्स का काम है ना, तो फॉरेंसिक करके और देखे कहाँ डेटा हो गया, क्योंकि एक फुटप्रिंट कि इंटरनेट पे जो रहता है तो उसका एक फुटप्रिंट है, यानी कहाँ से आया, उसका आईपी एड्रेस वगैरह सब उसका होती है, तो वो कहाँ से लीक हो गया मालूम हो सकता है। जब भी हमको ग्रीवेंसेस डिपेंड्स ऑन द ग्रीवेंस ना, सब ग्रीवेंस या चीजें आपको कौन टाइप का ग्रीवेंस देखना है। अभी कई चीजें इंटरनल, कई चीज बैंक के इंटरनल होंगी, कई चीजें एक्सटर्नल होंगी, कई चीजें आपको थर्ड पार्टी वेंडर होंगी। ये सभी चीजें हमें लीक हुआ वो तो बताएगी से नहीं हुआ है या थर्ड पार्टी वो जानने के लिए फॉरेंसिक पे ही जाए। बराबर है। क्या है कि इवेंचुअली वो डेटा किसका था, कस्टमर किसका था, बैंक था, जमीन किस बैंक। आइंदा करके बैंक ने क्या प्रिकॉशंस थी, नहीं है कि वो लीक हो गया आपको डीपीबी ये भी देखेगी कि ये कितने बार हुआ है, कैसे हुआ है, आपकी कितने गलती हाँ रियलिटी क्या है, कितना था, कितना लीक हो गया है, कितनी बार हो गया, फ्रीक्वेंसी में लीक, सब चीजें देखें। ऐसे वो यानी
एक लीक हो गई, समझो आप 3 लाख कस्टमर और एक कस्टमर वो करेंगे, लेकिन एक कस्टमर यानी एक 3 लाख कस्टमर है, 10,000 लीक हो गया तो करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। तो ये अलग जो पे हमने लिए थे, तो जैसे चाइल्ड डेटा है तो चाइल्ड डेटा नहीं किया, प्रोफाइलिंग नहीं किया, प्रोफाइलिंग किया, एज वेरिफिकेशन ठीक से नहीं किया, का है एसडीएफ का, ये जो चीजें हमने नहीं किए 150 करोड़ का है। फिर डेटा यानी 10,000 पर से प्रिंसिपल। अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि उसको कुछ कंसेशन है क्या, अभी जैसे 100 करोड़ बैंक पे लग गई, उदाहरण देता हूँ, तो उससे कस्टमर को कुछ पैसे जाता है क्या? द आंसर नो। कस्टमर को या डेटा प्रिंसिपल को रिइंबर्स करने की ये एक्ट अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के क्लॉजेस अंदर उसको अगर उसने प्रूव किया कि बैंक के नेग्लिजेंस से उसका डेटा लीक हो गया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो सेक्शन है उसके अंदर उसको पेनल्टी लग सकती है, यानी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ये पूरा विवरण किया हुआ है, ऑलरेडी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, नोटिस देंगे वगैरह वगैरह। ये कौन सा कॉज के लिए क्या है? सो करें और टेक्नोलॉजी गैस में मदद करेंगे, कंपनी रोड मैप मदद करेंगे, डीपी ऑफिस में मदद करेंगे, रोपा बनने में मदद करेंगे, पॉलिसी नोटिस का डिजाइन करने में मदद करेंगे, प्रिंसिपल पोर्टल क्या से होते उसमें मदद करेंगे, थर्ड पार्टी वेंडर का असेसमेंट है वो में मदद करेंगे, ब्रीच का जैसे फॉरेंसिक्स करना उसमें मदद कर, ऑडिट करना है, वो ट्रेनिंग है। सर मुझे एक डाउट क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर, अगर मुझे कोई एम्प्लॉय के हाथ में कोई डेटा लीक हो गया, फिर तो उसके लिए कैसे रिस्पांसिबल सर? पर्टिकुलर व्यक्ति ये जो ढाई कहाँ से हो गया? होगा तो सर जब भी बैंक से होता है हाँ वो सेफगार्ड्स एडिक्वेट नहीं है। अगर सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एडिक्वेट होते, चेक्स बैलेंस होते, तो लीक होने के चांसेस कम होते। जब लीक होता है तो उसका मतलब है कि चेक्स एंड बैलेंसेस है और करके इसके लिए ठीक है सर। अभी मैंने आपको एक स्लाइड था, इसमें लेवल 1 लेवल 2 ये सभी कंट्रोल भी के को करने हैं। लेवल 1 है करके नहीं करो ये बोल सकते सर? अगर 1 में मतलब 100 करोड़ के नीचे है तो 250 करोड़ कहाँ से? अरे अभी 250 करोड़ ये डीपी भी ऐसे नहीं कि आपका हो गया और 250 करोड़ का आपको क्या क्या है, कितना डेटा गया, कैसे आप क्या प्रिकॉशन थे, वो दोबारा नहीं होना कि आपने क्या स्टेप, ये सब चीज देखेंगे ना। अपने अगर क्या करते ले रहे हैं, सभी बैंक बहुत लाइटली ले रहे हैं। अभी 25 में आज जून 26 में है और ये इसकी बात कोई बैंक में स्टेप्स नहीं है बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब ये है कि आज हम इसमें कोई अच्छा भी नहीं है कि कोई करना आपको
ये जनरल ये पूरा ऐसी है कि लगता है कि ये आराम में करें, आराम में करें कि है आप कितना बड़ा स्कोप है ये करने का। सर ये आप दोगे? हम एक मिल आपको। अच्छा अच्छा। सर इसमें आईटी का पार्ट कितना वापस से रिपीट करेंगे सर? सर हम रवि वो किरण क्या है अभी इसमें अभी CEO जुड़ा मतलब जुड़ा है, वापिस रिपीट करो जिस हमारे CEO या डायरेक्टर को सो रिपीट सर उसके लिए वेरी आपके कांटेक्ट नंबर में ये जो लिखा हुआ है टेक्निकल पार्ट कौन, जो थर्ड कॉलम में पार्ट है ये आई रिलेटेड है। प्रोटेक्शन हाँ प्रोटेक्शन वाला रिलेटेड है, ये सभी चीजें बिजनेस रिलेटेड है। कुछ कुछ कैसे रहता है ये आईटी के रिगार्डिंग है तो वो थोड़ा बोल के पूछ रहे सर। रिपीट के सुना नहीं हम थोड़ा मीटिंग ना तो समझ में नहीं। हाँ अच्छा तो हमने क्या था तो ये जो ग्रोथ है आईटी डिपार्टमेंट का ये में हाँ एक मिनट करिए। हाँ कांटेक्ट एक मिनट मैसेज सब हम ये जो ना तो हम जो कंप्लायंस के लिए 17 करने पड़ रहे हैं उसमें से आईटी के 107 यानी 17% या 8% टू राउंड ऑफ 18% 100 आईटी है, बाकी का सब बिजनेस यानी नॉन आईटी है। ओके थैंक यू सर। ये बैंक का काम है। ये आपका प्रश्न बहुत है, सभी जगह लगता है कि आईटी ने करना है, आईटी ने नहीं करना है, सभी ने साथ के करना है। सो अपने नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट कुछ हो गया ये वो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सर आप देखेंगे कि जैसे 250% हुए हैं और सब लोग शांति से एक एक चीज समझ रहे, पूछ रहे